There are over 1.5 billion Android devices in the world. The app which we are using in our day-to-day life is also built by a developer like us. So in this episode, I'm going to share the complete journey of Saksham, who is an Android developer, like how he get into FamPay as a Android developer intern. Also, we will love to hear about the journey, like how he gets started into Android development, what are the projects he has built, and how to reach out to a company to get a job. So I hope you watch this video till the end, and if you like it, make sure to subscribe to my channel. I'm Summer, your host, and you are watching The Summer Show. So hi Saksham, how are you, bro, man? I'm good. Nice. So in this episode we are going to discuss about the Android development journey, like how you get into FamPay and how someone can start with Android development. So yeah, start karte hain. So Saksham, can you give a small introduction about yourself, like what are you currently doing and your education background to all our listeners as well as viewers? Yeah. Okay. Saksham Sharma this side. I belong to Rishikesh. Right now I am in fourth year of my college of BTech CS from Graphical Hill University, Dehradun. I'm fond of listening music and I have a special love for food also. Nice. Okay. Right now I am an Android developer intern at FamPay. And I started my Android developer journey when I was in second year. Then I'll start my Android developer journey, and I dedicated to it, and I'll do everything, and I love Android development, and that's why right now I'm in front of you as an Android developer intern at FamPay. Nice. So Saksham, what motivate you to choose Android development? Like there are lots of field, like for every beginner they start from web development. So how did you choose किया मेरे को Android development में ही जाना है? Yeah. Okay. Actually, what happens that when I was in second year, my faculty came in the class and said that why don't you build something for your college, like. Yes. So why don't I develop something for my college? Okay. So I developed an app for my college faculties. Okay. Named Digital Register. Okay. In that, what faculties have that they can mark attendance, they can upload their syllabus, videos, PDFs, and their whole, like, whatever they have, like the register they have, I'll make that as a digital register. So it became very popular. Now it has my college official app that I have developed. Around 15,000 users it has now. Yeah, you have really solved a major issue, and yeah. Yes. Nice. And basically after building a product you will get some happiness कि हाँ मैंने कुछ develop किया and people are using in a larger scale. So खुशी कुछ अलग ही होती है. Nice, man. सही. Yeah. And now coming back to the most important part, like everyone wants to know how you get into FamPay, and can you give a brief introduction description, like कैसे apply किया, क्या interview process था, and now you are as a Android developer intern. So please share the complete journey. Okay. What happens that okay, मैं starting से बताता हूँ कि हुआ क्या था. कि मैं ऐसे ही नेट में सर्फिंग कर रहा था रैंडम यूट्यूब पे, कि यूट्यूबर्स की वीडियोस देख रहा था. तो एक कोडिंग ब्लॉग्स नाम का एक चैनल है जिसमें अर्नव भैया की एक वीडियो थी जिसमें टॉप कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज के बारे में बताया था, जैसे टेक स्टार्टअप कंपनीज क्या फॉलो करती है. तो उसमें हुआ क्या था कि मैं उस वीडियो को देख रहा था. From that video I get to know about FamPay. Okay. फिर मैं FamPay की वेबसाइट में गया, मैंने उनके बारे में पढ़ा. So I really got inspired that what idea they have. Like FamPay is India's first neobank for teenagers, and they have numberless card. So it really inspired me a lot, and the idea is very unique. So I really love the idea. So from that day I
wants that I want to intern in that company. Okay, so Nice. ये स्टार्टिंग का प्रोसीजर था, ठीक है, जिसमें ये पूरा वो था कि मुझे फैम पे के बारे में कैसे दूँ। उसके बाद क्या था, मैं उनके वेबसाइट पे गया, मैंने हायरिंग सेक्शन मतलब करियर सेक्शन में गया, मैंने वहाँ पे देखा कि हायरिंग के लिए क्या क्या मतलब कौन कौन सी अवेलेबल वैकेंसीज है। तो वहाँ पे एंड्रॉइड डेवलपर था, एंड्रॉइड डेवलपर इंटर्न वैकेंसी थी। तो मैंने उसमें गया, बट मैंने अप्लाई करने के बारे में सोचा, मैंने अप्लाई कर दिया था, मैंने फॉर्म वगैरह भर दिया था, तो काफी जैसे काफी टाइम हो गया था, बट कोई ना रिस्पॉन्स नहीं आया। ऑब्वियसली इतनी सारी एप्लीकेशंस होती है तो फैम पे के लिए भी काफी डिफिकल्ट होता है कि किसी को सेलेक्ट करना। बट वो होता है ना कि मुझे वो चाहिए कि चाहिए, तो ऐसा वाला हो गया था वहां पे कि मुझे फैम पे का इंटर्नशिप चाहिए। तो हुआ क्या था कि अब मुझे ऐसा था कि मुझे हाईलाइट होना है जिससे फैम पे को पता चले, ठीक है, एक सक्षम शर्मा नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट है जो एक एंड्रॉइड डेवलपर है। तो मैंने क्या किया, मैंने फैम पे की वेबसाइट में गया, मैंने फैम पे का पूरा डिजाइन और स्ट्रक्चर देखा कि कैसे कैसे उनका काम करता है। फिर मैंने उनके एंड्रॉइड ऐप में गया, फिर मैंने उनकी एंड्रॉइड ऐप देखी, पूरा स्ट्रक्चर देखा कि वो क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये था कि हाईलाइट कैसे होना है। तो एक सडन थॉट आया कि क्यों ना मैं एक एंड्रॉइड क्लोन बनाऊं, ठीक है, और उसको लिंक्डइन पे पोस्ट कर दूं और उनके फाउंडर्स और हायरिंग टीम को टैग कर दूं, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, तो ये हो गया था। अब था कि अब मेरे दिमाग में मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो एंड्रॉइड ऐप बना गया है वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना गया है फैम पे का, ठीक है। तो हरजोत सिंह ओबराय है जो मेन है इंजीनियरिंग टीम के हेड, उन्होंने उस ऐप को बनाया, ठीक है। तो उनका इंटरव्यू देखा था मैंने, तो उन्होंने ये कहा था कि जो 90% है वो जावा में बना है एंड्रॉइड ऐप और 10% कॉटलिन में बना है। तो मैंने भी वही स्ट्रक्चर फॉलो किया। ऑब्वियसली इतना बड़ा ऐप मुझे नहीं बनाना था, मुझे एक बेसिक प्रोटोटाइप बनाना था जिसमें मैं अपने आप को हाईलाइट कर सकूं। तो मैं उनके ऐप में गया, मैंने उस ऐप को डीकम्पाइल किया, मैंने स्ट्रक्चर देखा पूरा कैसे कैसे क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैंने उसका प्रोटोटाइप तैयार किया, मतलब एक ऐसा फिग्मा में डिजाइन वगैरह बनाया कि ठीक है ये स्क्रीन मुझे बनाई। तो प्रॉब्लम एक जगह पे मुझे ये आई थी कि उसमें क्या था कि वो सिर्फ टीनेजर्स के लिए और मैं अबव 18 हूँ, तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता था, मतलब उसकी मेन स्क्रीन को एक्सेस नहीं कर सकता। तो और मुझे मेन स्क्रीन बनानी थी, तो वो एक इशू था मेरे लिए। तो मैं उनके प्ले स्टोर में गया, मैंने उनका फैम पे ऐप सर्च करा, तो जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं फैम प्ले स्टोर में ऐप्स के, मैंने वहां से देख के उसकी मेन स्क्रीन बनाई है और बाकी थोड़ा बहुत अपना आइडिया वगैरह बनाया। तो फिर मैंने 3-4 दिन लगे मुझे इसे बनाने में, ठीक है। मैंने आइकन्स वगैरह खुद बनाए, थोड़े नेट से डाउनलोड करे, अवेलेबल वेबसाइट्स होती है तो वहां से मैंने डाउनलोड कर लिए थे। तो मैंने 3-4 दिन लगे मुझे उसे बनाने में, मैंने उसे बनाया। फिर मेन था कि पोस्ट करूं कैसे, तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि अजीब सा लगता है कि कैसे होगा, थोड़ा डर सा बैठ जाता है, ठीक है, कि अगर सही नहीं बना। ऑब्वियसली लिंक्डइन एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है, तो थोड़ा सा डर था मेरे पास। बट मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स ने काफी सपोर्ट किया मुझे कि डाल दो, देखा जाएगा, जो भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, ठीक है। तो मैंने डाल दिया, ओके। तो बहुत मुझे नहीं पता था वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। तो अभी मैं बताऊं तो उसके अराउंड 49-50,000 व्यूज हैं, ओके। और जब मैंने पोस्ट कर दिया था उसको लिंक्डइन पे, तो आई गेस उसके 2 घंटे के बाद ही मुझे फैम पे से कॉल आ गया था, ओके। हाँ, सिर्फ 2 घंटे के अंदर मतलब मैंने इतनी जल्दी रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं किया था। मुझे लगा था ऑब्वियसली इतनी बड़ी कंपनी है, थोड़ा टाइम लगेगा उनको पूरा करने में, बट 2 घंटे के अंदर मुझे रिस्पॉन्स आ गया था। मुझे फैम पे की टीम से कॉल आया, तो उन्होंने एक घंटे का एक नॉर्मल इंटरव्यू भी नहीं कहेंगे उसे, एक नॉर्मल टॉक ली, जैसे जाना उन्होंने मेरे बारे में कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ से हूँ, लाइक दैट्स इट। तो वो हो रहा पूरा फ्लो, ठीक है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि शाम को एक और कॉल आएगा जिसमें आपको इंटरव्यू का प्रोसीजर बताया जाएगा, ओके, ठीक है। तो शाम को मुझे कॉल आया उनकी हायरिंग टीम से कि आपका ये प्रोसीजर है, दैट आपका एक इंटरव्यू कॉल होगा हरजोत के साथ ही, ठीक है, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। मैंने बोला ओके, ठीक है। तो फिर 1-2 दिन बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू भी एक्चुअली वो भी एक प्रॉपर इंटरव्यू नहीं था, वो बस एक हरजोत और मेरी एक कन्वर्सेशन, हाँ, करेक्ट कन्वर्सेशन था, बस एक कि हरजोत ने मेरे बारे में जाना, मैंने हरजोत के बारे में जाना, तो बस एक कन्वर्सेशन था, ठीक। तो हरजोत ने मुझे ये कहा कि हरजोत को मतलब मेरे प्रोजेक्ट्स और काफी अच्छे लगे, मेरी नॉलेज वगैरह देख के। तो हरजोत ने ये कहा कि मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ और आपके पास 48 आवर्स है उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। मैंने कहा ठीक है, ओके। तो हुआ था कि असाइनमेंट मेरे पास आया,
मैंने उस असाइनमेंट को पढ़ा, पूरा देखा कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर वगैरह बनेगा उसका। तो मैंने 48 आवर्स के अंदर अंदर उस असाइनमेंट को बना के दे दिया, ठीक है। तो फिर उसके आई गेस एक हफ्ते बाद असाइनमेंट को रिव्यू वगैरह करा होगा हरजोत ने, हायरिंग टीम ने और एंड्रॉइड टीम ने। तो उसके एक घंटे के एक हफ्ते बाद मुझे वो आ गया था, मेल आ गई थी कि आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए हो और आपका हरजोत के साथ इंटरव्यू बोला। तो वो जब मेल आई तो मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था कि ओके ठीक है, इतने स्टेप्स तो कंप्लीट कर ही लिए मैंने, Nice. आगे भी हो जाएगा, देख लेंगे। फिर इंटरव्यू हुआ मेरा, 1 घंटे का इंटरव्यू चला हरजोत के साथ। उसमें कोड की बात हुई और एंड्रॉइड के कॉन्सेप्ट्स की बात हुई। तो मैंने बताया, तो ठीक है, हरजोत को भी लगा ओके ठीक है, अच्छा है। तो फिर हमारा इंटरव्यू खत्म हो गया, ठीक है। तो 1 घंटा आई गेस 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ता लग गया था। तो 1 हफ्ते या आई गेस 4 to 5 डेज के बाद मुझे मेल आ गई थी कि आप सेलेक्ट हो गए हो एज अ एंड्रॉइड डेवलपर इंटर्न और congratulations and welcome to FAM. So I got call from Chitra, that from hiring team. So this is the all procedure of my hiring process. FAM. या सक्षम, दैट्स रियली एन इंस्पिरेशनल जर्नी। एंड व्हेन जब भी तुमने मतलब लिंक्डइन पे पोस्ट डाला था, आई ऑल्सो चेक दिस आउट कि हाँ यू आर अप्रोचिंग टू फैम पे। आई प्रीटी मच श्योर कि हाँ यू विल बी सेलेक्टेड बिकॉज द ऐप जो आपने वीडियो बनाई थी वो बहुत ही सही थी। सो या कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट, नाइस। So, do you think the approach right now people are using, like they are creating something for that particular company and they posted it on a social media platform so that the co-founder or the HR will recognize कि हाँ he has done something for the company? Will this change the structure of the hiring process? Like अभी जैसे कि आपने एक ऐप बना दिया so that your hiring process pretty much quite simple, मतलब ज़्यादा technical था नहीं. So what would you say about this? Also there is one more example in the LinkedIn कि हाँ someone from the cred I think Akshans I guess yeah something Avkash something yeah Avkash तो उसने मतलब एक वीडियो बनाई थी एंड ही ऑल्सो गॉट पॉपुलर फ्रॉम दैट एंड ऑल्सो गेट अ डिज़ाइन इंटर्न. सो व्हाट डू यू से अबाउट दिस होल प्रोसेस कि हाँ इज इट रियली चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द हायरिंग प्रोसेस? या actually from my point of view prototype is more good for as a resume. प्रोटोटाइप हमेशा से अच्छा रहेगा एक रेज्यूमे से. रेज्यूमे में आपको आपकी नॉलेज लिखी है. अब इंटरव्यूअर को ये नहीं पता कि वो सच है या कितनी आपको नॉलेज आती है उसमें, वो इंटरव्यू नहीं कर सकता. उसके लिए आपको इंटरव्यू प्रोसीजर देना होता है, पूरे क्वेश्चंस वगैरह देने होते हैं. बट अगर आप प्रोटोटाइप बना के आप लिंक्डइन पे पोस्ट करते हो तो वो हमेशा से अच्छा रहेगा कि ओके ठीक है, स्टूडेंट को नॉलेज है कंपनी के स्ट्रक्चर की, कंपनी को उसने देखा होगा. ऑब्वियसली अगर मैं भी किसी कंपनी में अप्लाई करता हूं तो मैं उसके पहले जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ता हूं या इंटर्न डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ता हूं कि कंपनी को क्या चाहिए, वो क्या ढूंढ रही है एक स्टूडेंट में. तो मैं उसके बारे में पढ़ता हूं. मैंने देखा कि फैम पे क्या ढूंढ रहा है. तो ऑब्वियसली किसी भी कंपनी में आप अप्लाई करने से पहले आप, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक हाईलाइट होना आज के टाइम पे काफी डिफिकल्ट हो चुका है. कंपटीशन इतना ज्यादा है. मैं अच्छा हूँ, मुझसे अच्छे भी बहुत सारे होंगे. प्रॉब्लम ये होता है कि हाईलाइट कौन हुआ, मेन बात आ जाती है हाईलाइट. ठीक है. तो हाँ, मैंने अब देखा है कि मैंने काफी सारे देखे लिंक्डइन में कि अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, कंपनीज को टैग कर रहे हैं, उनके फाउंडर्स को टैग कर रहे हैं और कंपनीज रिस्पॉन्ड भी कर रही है. तो वो काफी अच्छी चीज लग रही है कि अब हायरिंग प्रोसेस मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा और चेंज होने में, कि स्टार्टअप्स ने अभी ये फॉलो करा है. मेन है कि और कंपनीज भी इसे फॉलो करे कि आप कंपनीज के लिए कुछ बनाओ, उनको टैग करो और फिर आप उससे प्रोसेस हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी. तो वो एक ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप बनाते हो किसी के लिए कुछ, या लाइक कंपनी के लिए आपने कुछ बनाया. ठीक है. तो वो क्या रहेगा कि उससे डेडिकेशन दिखता है, आप कंपनी के लिए कुछ करना चाहते हो. Mathiya, you really want to join this particular company. This shows. Yes. Agree, man. And इससे ये भी फायदा है कि जो टायर 3 कॉलेजेस के स्टूडेंट है, they will also get an opportunity कि हाँ they also get selected in this good companies. So yeah, I think in upcoming year most of the student will try this hack kind of कि हाँ create something and post it on social media and tag all the co-founders or the HR and you can show your work on the social media platform.
That's a great man. And yeah, Saksham, can you share कि about your Android कि हाँ आपने कहाँ से सीखा Android development और whether it's from YouTube या any particular courses and क्या approach थी तुम्हारी सीखने की, like what people generally do is they're taking any course और वो course के according ही चलते हैं, मतलब after completing the particular course जब उनको कुछ नया create करना होता है तो फिर वो सोचते हैं कि हाँ मैं कैसे क्रिएट करूँ, बिकॉज उन्होंने पूरा कोर्स का ही फॉलो किया होता है, वन कोड टू कोड मतलब कॉपी किया होता है. सो व्हाट इज द अप्रोच ऑफ लर्निंग एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट? Okay, I'll share my journey. Yeah, sure. From where I'll start. Okay, I'll start Android development from YouTube. Okay, I'll search in YouTube Android development codes, and there are lots of courses available in YouTube. So okay, प्रॉब्लम आ जाती है कि आप काफी सारे कोर्सेज हैं, आप कौन से सेलेक्ट करो, क्योंकि ऑब्वियसली सारे यूट्यूबर्स बेस्ट है, सबने अपना बेस्ट दिया है उस कोर्स को बनाने के लिए. मेन आ जाता है कि आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो, कौन सा आपके लिए परफेक्ट है. अगर आपको एज ए एंड्रॉइड डेवलपर सिर्फ सीखना है, आपको कोई फ्यूचर उसके लिए नहीं है, तो ओके ठीक है, आप सिर्फ सीखो और खत्म करो, थोड़े से एप्स बनाओ, प्रोजेक्ट्स बनाओ, कंप्लीट करो. जैसे लाइक एक आपका एक एग्जाम टाइप हो गया, जैसे कॉलेजेस में सब्जेक्ट होते हैं, तो उस टाइप का हो गया, ठीक है. बट मेरा ऐसा था कि मुझे इसमें अपना फ्यूचर बनाना है एज एंड्रॉइड डेवलपर और एज ऐप डेवलपर. ओके, तो मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट इसलिए चुनी क्योंकि एंड्रॉइड डेवलपर लाइक एंड्रॉइड ज्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू iOS. लाइक एंड्रॉइड के यूजर्स ज्यादा है. मैंने एज एंड्रॉइड डेवलपर स्टार्ट किया अपनी जर्नी. तो मैंने YouTube से स्टार्ट करी. तो YouTube में काफी चैनल्स मैं अभी भी फॉलो करता हूँ, जैसे कोडिंग इन फ्लो, कोडिंग ब्लॉग्स, कोडिंग विद मिट्स, सिंप्लीफाइड कोडिंग, माइंड ओक्स. तो ये काफी सारे चैनल्स मैं फॉलो करता हूँ. ये जैसे 5 नाम मैंने बताया, तो ये काफी अच्छे हैं एज ए एंड्रॉइड डेवलपर, आपको अगर फ्यूचर बनाना है उसमें, ठीक है. Okay. तो मैंने YouTube से स्टार्ट किया. मैंने बेसिक नॉलेज YouTube से ले ली थी कि बेसिक नॉलेज क्या होती है एंड्रॉइड डेवलपर की, एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए. फिर मैंने क्या करा, फिर जब मुझे लगा कि ओके ठीक है, मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, देन आई स्टार्ट द एंड्रॉइड कोर्स. ओके, आई टेक द कोर्स फ्रॉम Udemy. सो पेड कोर्स था, तो थोड़े से पैसे दिए मैंने. तो मैंने फिर उस कोर्स को पढ़ा, पूरा कंप्लीट करा, सारे प्रोजेक्ट बनाए, सारे असाइनमेंट कंप्लीट करे. तो उससे क्या हुआ कि मुझे कॉन्फिडेंस आ गई, ठीक है अब मैं एक अच्छा लेवल का, मतलब ठीक है मैं थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ एंड्रॉइड डेवलपमेंट में. फिर मैंने प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट करे. मैंने डायरेक्ट एडवांस एंड्रॉइड डेवलपमेंट में नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था कि थोड़े बहुत मुझे खुद से भी करना है, तब जाके मैं एंड्रॉइड डेवलपर के एडवांस कॉन्सेप्ट पे जा सकता. तो पहले मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए. सो सबसे पहला प्रोजेक्ट था मेरा वही कॉलेज के लिए ही, डिजिटल रजिस्टर. तो वो जब इतना ज्यादा फेमस हो गया, तो मुझे लगा कि ओके ठीक है, तो मैं काफी ज्यादा अच्छा एंड्रॉइड डेवलपमेंट में कर सकता हूँ और अच्छा कर सकता हूँ. फिर मैंने और प्रोजेक्ट्स बनाए, प्रोजेक्ट्स लाइक मेरे इंस्टाग्राम क्लोन, लिंक्डइन क्लोन. तो लिंक्डइन क्लोन अब लाइक अभी लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं हो रखा है, तो मैं उसको जल्दी पोस्ट कर दूंगा. उसके क्विक चार्ट, SpaceX API, तो काफी सारे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, गिटहब पे अपलोड करे हुए हैं, मेरे लिंक्डइन पे भी अपलोड करे हुए हैं मैंने. तो ठीक है, फिर मुझे लगा कि ओके एंड्रॉइड डेवलपमेंट में अब काफी कुछ आ गया है, अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक लेवल ऊपर करते हैं उस एंड्रॉइड डेवलपमेंट को. फिर मैंने क्या करा, अब प्रॉब्लम था कि एंड्रॉइड जो एडवांस कॉन्सेप्ट, एडवांस कोर्स है, वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं. तो मैंने फिर, और प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आप इतना पैसे दे रहे हो, तो एक क्वालिटी कोर्स मिलना भी चाहिए आपको, ठीक है. फिर मैंने काफी सारी वेबसाइट्स में सर्च करा, उनके डिस्क्रिप्शन पढ़ा, उनका सिलेबस पढ़ा कि क्या क्या वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या उनका प्राइस वगैरह है. तो मुझे उन सब में से सबसे बेस्ट लगा कोडिंग ब्लॉग्स का. कोडिंग ब्लॉग्स अर्नब भैया का ही है. सो अर्नब भैया इज लाइक आइडल फॉर मी. ओके, तो मैंने कोडिंग ब्लॉग्स का एंड्रॉइड डेवलपमेंट का कोर्स लिया. मैंने उसको स्टार्ट किया, कंप्लीट किया उसको, और फिर मेरे को एंड्रॉइड के एडवांस कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए मेरे. तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी कुछ एंड्रॉइड डेवलपमेंट में कर सकता हूँ, मतलब लाइक एक स्क्रैच से एक ऐप को पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ कि कोई भी, मतलब मैंने काफी बग्स फिक्स करे हैं स्टूडेंट्स के, और मैंने अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के बग्स फिक्स करे हैं, उनको हेल्प करी एंड्रॉइड डेवलपमेंट में. सो मैं उस सिचुएशन को देखता हूँ कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था एंड्रॉइड डेवलपमेंट, और आज जब मैं
बग फिक्स कर रहा हूँ, तो काफी अच्छी जर्नी थी। काफी अप डाउन आए, प्रॉब्लम्स आई, सो काफी बार लगा कि अब छोड़ दो, नहीं बन रहा है। काफी बार लगता है कि नहीं हो रहा है मुझसे, हम छोड़ दो, नहीं हो रहा। बट मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स थे मेरे जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, रोहित और स्तुति। इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि तू कर ले, कोई भी प्रॉब्लम आएगी देख लेंगे, कोई नहीं। ऑब्वियसली उनको नहीं आता था, बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो करते मैंने सारे बग्स फिक्स करे, मैंने सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे। तो आज ऐसा है कि मैं मतलब इतना मतलब ऑब्वियसली फेमस ही कहेंगे कि एंड्रॉइड डेवलपर इंटर्न। मेरी काफी इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे मुझे काफी मैसेजेस आने लगे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। Yeah, man, that's really an amazing journey, man. Absolutely. So, Saksham, do you face any challenges while learning the Android development? या अभी भी कोई challenges face करते हो while creating an app? या Yes, the most common challenge is hardware and software fragmentation. Okay. So I'll describe that. So Yeah. software fragmentation means क्या हो गया कि obviously Android में काफी सारी एंड्रॉइड वर्जन अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। एंड्रॉइड 9, 10, 11, 12, तो काफी सारे एंड्रॉइड वर्जन अवेलेबल। सो किसी एंड्रॉइड वर्जन में क्या होता है कि उनके अपने कॉन्सेप्ट चलते हैं। जैसे स्टोरेज एक्सेस क्या होता है, एंड्रॉइड 9 में अलग है, एंड्रॉइड 10 में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको पूरा उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ो, पूरा कंप्लीट करो, फिर आप उसको स्टार्ट करोगे। तो कभी कभी क्या होता है, कोई जैसे मैं जब नया था एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, तो मैं तो मुझे ये लगता था कि सारी एंड्रॉइड डेवलप जो वर्जन्स होते हैं वो सब सेम होते हैं, क्योंकि वो गूगल ही बना रहा है, तो वो इस तरीके से बनाएगा कि सब में चले। ठीक है, वो चलते थे, बट किसी जगह पे वो क्रैश कर जाता था। क्योंकि एंड्रॉइड 9 में जो कोड लिखा है वो कहीं जाके एंड्रॉइड 10 पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सो वो मैंने पढ़ा, तो ठीक है, वहां पे मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, बट हो गया इजी। उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जहां सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम आती थी हार्डवेयर फ्रेगमेंटेशन में, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि एंड्रॉइड में काफी सारी स्क्रीन साइजेस हैं। अब iOS में क्या है, फिक्स है कि इस i6 का, 7 का, 8 का, 10 का जो भी है, उन सबकी स्क्रीन साइज फिक्स है। लेकिन एंड्रॉइड में ऐसा कुछ नहीं है। एंड्रॉइड में काफी सारे स्क्रीन साइजेस है, कीबोर्ड के स्पेक्स अलग हैं, कैमरा बटन हो जाता है। सो काफी सब कुछ प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीजें मैंने फेस करी है, ठीक है। और जब आप अपना कोई ऐप प्ले स्टोर पे अपलोड करते हो, तो होता है कि विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आती है कि ओके, आपका जो ऐप है वो ऊपर आने में काफी टाइम लगता है कि उसको ऊपर आने में, स्केल होने में, ठीक है। एक वो प्रॉब्लम मैंने फेस करी। स्केलेबिलिटी भी हो जाता है थोड़ा सा कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। बाकी बग्स तो कॉमन चीज है जो हर फील्ड में होती है। अगर आप कोई डेवलपमेंट स्टार्ट करो और उसमें बग्स नहीं है, इसका मतलब उस सॉफ्टवेयर में कुछ है ही नहीं। वो एक सिंपल सा बग्स आया, ठीक है, बग्स आते हैं, ठीक है, वो कॉमन है। सो इंजीनियर्स के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो, जिसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प है, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो हो गया, मीडियम हो गया, कोरा हो गया, तो काफी सारी ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप हेल्प मिल जाती है आपको कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको कैसे फिक्स करो। तो आपको भी पता चल गया होगा कि गूगल एक स्किल बन गई है, गूगल में सर्च करना। तो आज के टाइम पे कि मेन आ गया कि आप गूगल को कैसे अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करते हो, तो वो भी एक स्किल बन गई है। तो ये भी काफी स्ट्रेंज यूनिक आइडिया है। प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स आना कॉमन चीज है। मेन है कि आप उसको टैकल कैसे करते हो, आप उसको उस प्रॉब्लम को कैसे फेस कर रहे हो। और यही बोलूंगा कि प्रॉब्लम्स आती है, कोई बात नहीं, कॉमन है, प्रॉब्लम्स आना बहुत कॉमन चीज है। बट मेन है कि आप उसको छोड़ो मत, उसको टैकल करो, और उस प्रॉब्लम को, अगर उस प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। ये कॉमन सी चीज है कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। आप अपने सीनियर डेवलपर से पूछो, अपने कोलीग से पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो जिनको एंड्रॉइड डेवलपमेंट आती है, आप उनसे पूछो, अब वो हेल्प करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स आई, बट मैंने फेस करी और एंड्रॉइड डेवलपमेंट का आपकी जर्नी स्टार्ट कर दी। Nice man, nice. And yeah, there are lots of communities, so तुम वहाँ पे भी reach out कर सकते हो, like LinkedIn है, there are different communities. So LinkedIn है, Telegram पे चैनल, मतलब Telegram पे एंड्रॉइड डेवलपर्स के चैनल है, WhatsApp में ग्रुप्स बना रखे हैं, Slack में मैं काफी सारे चैनल्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ एंड्रॉइड डेवलपर्स के और वेब के, मतलब कॉमन है एक वो। सो या मेन है कि अगर स्टूडेंट कुछ करना चाहता है तो रिसोर्सेज काफी सारे अवेलेबल हैं। मेन है कि अगर वो करना चाहे तो वो कर सकता है। ये ऐसा सीन हो गया से, मतलब स्टूडेंट डेडिकेट है कि नहीं, काइंड ऑफ। हाँ, या डेडिकेट है तो वो कर सकता है, नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। अग्री मैन, अग्री।
So yeah, coming on to the next question, like there are lots of languages जैसे कि Kotlin है, Java है, Flutter है, Swift है. So which one should students start with? या कोई भी हम language pick कर सकते हैं. So what was your view? Actually, if you want to start, if a student wants to start with Android development, native development, I'll say native development, that Java and Kotlin for Android, okay, and Swift is for iOS. Okay. And if a student wants to start with cross-platform, then he or she can go with Flutter or React Native. So it totally depends on student what he or she wants to do. Okay. So मेरा ऐसा था कि मुझे नेटिव डेवलपमेंट ज़्यादा पसंद थी. मैंने फ्लटर पे भी काम करा है, मैंने रिएक्ट में भी काम करा है, बट मुझे एंड्रॉइड ज़्यादा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा. मैं ज़्यादा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई उसमें डेवलपमेंट में, तो मुझे एंड्रॉइड ज़्यादा अच्छी लगी. बट सून मैं एज iOS डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर दूंगा. तो जैसे मेरे एंड्रॉइड के सारे लाइक एंड्रॉइड काफ़ी बड़ा टॉपिक है, सो उसको कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगेगा. सो जैसे ही मेरे लगे मुझे कि ओके मैं एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया एंड्रॉइड डेवलपमेंट के, सो मैं iOS डेवलपमेंट भी स्टार्ट करूंगा जरूर. Nice man. And also I have started the Flutter development. Like I am a web developer, but right now I think कि हाँ mobile users बहुत हैं. So I thought कि why should not jump to the mobile development part. So yeah, I am also starting the Flutter development. So yeah. क्रॉस प्लेटफॉर्म का यही अच्छा होता है कि आप सिंगल कोड बेस में आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म में उसको चला सकते हो, तो वो काफी अच्छी चीज लगती है. अब आप जैसे कंपनीज भी अब काफी क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रही है. जो न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो वो भी क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, फ्लटर और रिएक्ट नेटिव को. बट हम ये नहीं कह सकते कि नेटिव डेवलपमेंट रिप्लेस हो जाएगी. नेटिव डेवलपमेंट कभी रिप्लेस नहीं हो सकती. क्रॉस प्लेटफॉर्म अच्छा है कि मेरे को भी काफी अच्छा लगा फ्लटर में कि फ्लटर काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है. मैंने ऐप्स बनाए थे, तो मेरे कुछ ऐप्स प्ले स्टोर में हैं अभी, सो ठीक है, अच्छा है. फ्लटर काफी अच्छी चीज है. रिएक्ट नेटिव पे मैंने ज्यादा काम नहीं करा, मैंने 1-2 महीने रिएक्ट नेटिव पे काम, तो रिएक्ट भी मुझे ठीक लगा. बट वही बात हो जाती है ना, जिसको एक जो चीज पसंद आ गई. तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट मुझे पसंद थी, काफी अच्छी लगी, तो मैंने एज एंड्रॉइड डेवलपर ही अपनी करियर को स्टार्ट किया. बट अब मुझे लग रहा है कि एज एंड्रॉइड डेवलपर की मुझे थोड़ी बहुत मतलब एंड्रॉइड डेवलपमेंट की काफी नॉलेज हो गई है. सो अब मुझे iOS में भी जाना चाहिए. अगर मुझे नेटिव डेवलपमेंट करना है तो मुझे एंड्रॉइड और iOS दोनों आनी चाहिए. अग्री मैन. मतलब पॉइंट ये कि हाँ यू शुड एक्सप्लोर एवरीथिंग. लाइक अगर फ्लटर स्टार्ट कुछ भी तुम स्टार्ट करो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, चूज दैट वन. सो या चूज दैट वन एंड स्टिक ऑन दैट. Like please complete that development or whatever your journey is. If you start with native development, then complete that native development. If you want to start with cross platform, then complete that cross platform. Like मैंने ऐसे देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैंने भी साथ हुआ था ऐसे कभी कि जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आई उसके पीछे चले गए, उसको पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा, अब लगा कि ठीक है अच्छा लग रहा है, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट वगैरह करी. बट फिर दूसरी कोई नई आई मार्केट, ऑब्वियसली मार्केट है, न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी. ठीक है, सबके साथ होता है, मतलब मेरे साथ भी होता है. ओके, हाँ, तो मुझे लग रहा है सबके साथ ही होता है ये. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही करते हैं. तो बट ठीक है, आप टेक्नोलॉजीज सीख हो, मार्केट में जो नया आ रहा है आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. कंपनीज में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, बट आपको अपनी फील्ड का सब कुछ आना चाहिए. लाइक अगर आप किसी फील्ड में, अगर मैं एज एंड्रॉइड डेवलपर किसी कंपनी में अप्लाई करता हूँ, तो जो भी उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो भी वो क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे उनका आंसर आना चाहिए. ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझसे कुछ पूछा और मैंने बोला सर मैंने ये किया है, मतलब मैंने एंड्रॉइड में नहीं, मैंने iOS में वो काम किया है. तो वो थोड़ा सा इशू बन जाता है कंपनीज का कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आंसर आप iOS में दे रहे हो, तो थोड़ा बहुत इशू वो आ जाता है. तो आप अपनी फील्ड में बेस्ट बन जाओ, फिर आप टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हो. Yeah, that's great, insightful knowledge sharing by you. So yeah, thank you Saksham for giving your insightful knowledge about Android development and about your experience. And yeah, if anyone want to contact you, you can the audience can contact Saksham on LinkedIn or Instagram. I will share the link in the description, so guys you can check this out. Thank you. एंड या सक्षम, अगर इन फ्यूचर एक और एपिसोड करने का मौका मिला तो या वी कैन डू वन मोर एपिसोड विद यू. सो या, थैंक यू सक्षम अगेन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय. सो या, आई होप यू एंजॉय दिस एपिसोड विद सक्षम. एंड अगर तुमने कुछ भी सीखा होगा थ्रू दिस एपिसोड,
So make sure to share it on the Instagram about your learning, and do tag us, me and Saksham, on the channel, on the Instagram story. Also, I will share some resources like how you can start your Android developer journey in the description, so you can make sure to check this out. And do like this video and subscribe to the channel for some amazing upcoming podcast episode. And yeah, I'm Summer, signing off for the day. Bye.